નમસ્કાર, રામ રામ દોસ્તો. ખાસ કરીને જણાવવા આવ્યો છું કે ભારત દેશની અંદર પાછળના ઘણા સમયથી સનાતની ધેર હિન્દુ રાષ્ટ્ર બનવાનું આવી ઘણી બધી વાતો આ સરકાર દ્વારા આપણને જણાવવામાં આવી રહી છે. અને ઘણા બધા સનાતની લોકો એવું કહી રહ્યા છે કે ટૂંક જ સમયની અંદર હિન્દુ રાષ્ટ્ર બની જશે. પરંતુ આ હિન્દુ રાષ્ટ્રની અંદર હિન્દુ સનાતની ધર્મ દેશ એટલે ભારત, અને આ ભારત દેશની અંદર હિન્દુઓનું શાસન કેટલું છે, મુસલમાનોનું શાસન, એમનો દબદબો કેટલો છે, એ આ વિડીયોની અંદર આપણને જોવા મળશે. કારણ કે એક બે દિવસ પહેલાં આપણે જોયું કે આપણા હિન્દુ રાષ્ટ્ર તહેવાર હોળી અને ધૂળેટી, આ પર્વ આપણે સનાતની ધર્મના દરેક આપણા હિન્દુ ભાઈઓએ સાથે મળી અને ઉજવણી કરી, ઠેર ઠેર જગ્યાએ હોળી દહન કર્યું. પરંતુ આપણે બધા હિન્દુ ભાઈઓ એકબીજા ઉપર કલર નાખીને ખુશીઓ મનાવતા રહ્યા. અને એવાની અંદર એક આપણા દેશની અંદર કે જ્યાં દિલ્હીની અંદર આપણે બધા કલર નાખતા રહ્યા, એકબીજા ઉપર કલર છોંટતા રહ્યા, કલર કરતા રહ્યા અને હોળીની ખુશીઓ મનાવતા રહ્યા. અને દિલ્હીની અંદર મુસ્લિમ સમુદાય દ્વારા એક નાનકડી બાબતની અંદર આપણા હિન્દુ ભાઈને જ્યાં સુધી એના શરીરમાંથી પ્રાણ ના નીકળ્યા ત્યાં સુધી લગભગ 50 થી 100 લોકો દ્વારા આ ધૂળેટીના દિવસે કે એક નાનકડી બાબત આપણે જોઈએ છીએ કે ઘણી બધી જગ્યાએ આપણા બાળકો હોય કે કોઈ પણ લોકો નાના એવા ગુબ્બારાની અંદર કલર ભરી ફુગ્ગાની અંદર અને એકબીજાને છૂટો મારતા હોય છે. અને આવાની અંદર એક ભૂલચૂકના કારણે 22 થી 23 વર્ષની ઉંમરનો યુવક છે આપણા હિન્દુ ભાઈ, એ કોઈક આપણા એના પરિવારના કે કોઈ કુટુંબીજનો હોય કે મહોલ્લાવાસી હોય, એમના ઉપર એ છૂટો ગુબ્બારો ફેંકવાની કોશિશ કરે છે. અને જ્યારે ગુબ્બારો ફેંકે છે અને એક ગુબ્બારો કોઈ મુસ્લિમ સમુદાયની એક લેડીઝ ઉપર લાગી જાય છે. હવે લાગી ગયો કે ના લાગી ગયો, પણ વાત એ છે, મુદ્દો એ છે કે ગુબ્બારો લાગી ગયો અને મુસ્લિમ યુવતીને, લેડીઝ, એના ઉપર થોડો ઘણો કલર લાગી ગયો. અને એના ભાગરૂપે મુસ્લિમ સમાજના લગભગ 50 થી 100 જેટલા લોકો આવી અને યુવકને ત્યાં સુધી મારતા રહ્યા કે જ્યાં સુધી યુવકના શરીરના પ્રાણ નીકળી જાય છે. લાકડી, ધોકા, સરિયા, જ્યાં સુધી આ માથાના ભાગનો ભેજો પણ બહાર નીકળી ગયો ત્યાં સુધી મારતા રહ્યા, જ્યાં સુધી યુવકનો પ્રાણ નીકળી ગયો. એ વાતનો વિવાદ આજે ત્યાં આગળ એટલી હદે ચાલી રહ્યો છે. ત્યાં આગળ ત્યાંના લોકોની અંદર, હિન્દુ ભાઈઓના લોકોની અંદર એટલો રોષ જોવા મળી રહ્યો છે. સમગ્ર ઘટનાનો વિડીયો અને ત્યાં આગળ કેટલો લોકોમાં રોષ છે, લોકો ત્યાંના શું કહી રહ્યા છે, એ પણ જરાક આપણે આ વિડીયોની અંદર નજર કરીએ. સાંભળજો, સાંભળવા જેવી વાત છે. વિડીયો પૂરેપૂરો જોશો એ વિનંતી. જોઈ લઈએ આપણે. હજુ સુધી એ લોકોને, હજુ એ આરોપીઓ ફરાર છે, કોઈને પકડવામાં પણ નથી આવ્યા. તો સાથે મળી જોઈ લઈએ. सारी दिल्ली में भी हमें योगी सिस्टम चाहिए, हमें योगी सिस्टम चाहिए। एक बच्चे को सिर्फ इसलिए मार दिया गया कि
योगी जी उसी समय इंसाफ करते हैं, तो मोदी जी भी और रेखा गुप्ता की सरकार भी यहाँ पे इंसाफ। इस वजह से मतलब क्राइम इतने दिन से नारी शक्ति है, और हमें रेखा गुप्ता जी पे विश्वास है कि वो एक नारी शक्ति है और दीदी हमारा साथ जरूर देंगी। ये लड़ाई है कहीं ना कहीं ये धर्म की लड़ाई बना दी गई है, ये धर्म की लड़ाई नहीं है मैम, ये मुसलमानों ने बनाई दी है लड़ाई, उन्होंने बनाई है, ये भी कुछ मुसलमानों ने, हर एक मुसलमान ने नहीं बनाई, कुछ मुसलमानों ने ये लड़ाई बनाई है। अच्छे भी है, इसने कहा ये धर्म की लड़ाई है, बच्चा गुब्बारा मार रहा था, मुसलमान लेडीज के लग गया, तो वो उसने अपने माफी मांग ली, जब भी किस बात पे भी लड़ाई हुई दोबारा, उन्होंने 50-60 बंदों को बुला लिया फोन करके, वो उस लड़के को घेर के सिल्लियों से मारा, डंडों से मारा, तलवारों से मारा, लट्टों से मारा, बहुत सारा पत्थर से मारा, पूछ दिया सर, भेजा निकल गया बाहर, घर की कुंडी लगा दी। क्या उम्र थी लड़के की? 24-25 साल। 24-25 साल का नाम क्या था उनका? काम वो नौकरी करता था, वो नाम क्या था उनका? शनि नाम है, शनि। ये जो ऐसे यहाँ पे सन्नी दूसरे समुदाय के इंसान द्वारा एक का मतलब इतनी बुरी तरीके से कत्ल करा जाता है, आप लोग क्या कहेंगे मैम उस पे? मैं चाह रही हूँ मैडम, खून के बदले खून, इनके घर पे बुलडोजर चले, बुलडोजर चलना चाहिए बिल्कुल। जो आरोपी थे क्या उन्हें पकड़ा गया? आपका किसी को पता नहीं मैडम, अभी कुछ नहीं पता है। सर किसी आरोपी को पकड़ा गया अब तक? अभी किसी को कुछ नहीं पकड़ा, अभी सब ताले लगा के सारे फरार हैं यहाँ पे से, सारे फरार हैं। मैडम 1 घंटे से आई, पुलिस भी 1 घंटे से आई, फोन करते रह गए, पुलिस 1 घंटे से आई और सारे भाग गए, उनको मौका मिल गया उनको। ये उनके 85 घर है यहाँ पे, बहुत ये संगठन में इतना जुड़, गैंग है ये, क्या है? पूरी गैंग ही है इनकी मैडम, पता नहीं कहाँ से कौन से कहाँ के बुला के यहाँ पे पाल दिए इन्होंने। हर किसी कोई भी बोलेगा उनसे 2 मिनट में झगड़ा कर लेंगे, गैंग बना के लड़ जाएंगे उनसे। अब बेचारे उस भाई के साथ भी मेरे ख्याल से यही हुआ है। तो कह रहे हैं वो बजरंग दल के सदस्य थे, इस वजह से ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, वो बहुत शरीफ बंदा था, मेरे भाई का दोस्त था, बड़े भाई का दोस्त था, वो आता था मतलब जॉब से ज्यादा किसी मतलब नहीं रखता, काम पे से आता था। अब ये है कुछ बोलने में क्या जा रहा है, बिगर हड्डी की जवान है, कुछ भी बोल दो आप, बोल दो वो बदमाश था, गुंडा था, कुछ भी बोल सकते हो आप मैडम, पर ऐसा कुछ नहीं था। पर वो सबसे जेन्युइन लड़का, पढ़ा लिखा लड़का था वो मैडम। बस ये क्या बोले, बड़ा दुख है हमारे को इस चीज का कि तो ये पुलिस प्रशासन ने किसी तरीके की कोई कार्रवाई कर रहा है? कुछ भी कार्रवाई नहीं जी मैम, जी तो सब ऐसे बोलते रहते हैं, कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई है। आप लोगों ने पुलिस चौकी का घेराव कर रखा है? कुछ भी नहीं हुई है, सब अपने में लगे पड़े हुए हैं, वो लड़का इन्होंने खो दिया अपना। क्यों जी, हम तो ये चाहते हैं कि हमारे को पूरा काम मिले, कि उनको बंद करें। कुछ नहीं पता चल रहा, किसकी सुनवाई पता चला, अभी तो मैसेज ही आया था, मैं तुरंत ही आया हूँ भागे में। तो आरोपी कौन है, क्या उनकी कोई पहचान हुई है कि कौन? आरोपी मैडम बहुत है, एक हो तो पहचान हो ना, बस बहुत है मैडम। कह रहे बेरहमी से उन पे मतलब बहुत एक वो बेचारा आया चाहिए योगी, वो बेचारा आया, लगाई थी उसने, लगा के खड़ा किया, उसको घेर के लठ से पता नहीं लठता रोड दी लोहे की, सर पे वार किया मैडम, बहुत बेरहमी से। 10-15 बंदे मारे थे, कैसे बचेगा फिर? कह रहे किसी मुस्लिम बच्चे पे गुब्बारा फेंका था, तो ये मुस्लिम बच्चे में फेंका नहीं था, वो लगा भी नहीं है गुब्बारा मैडम। ये होली थी, होली में तो बच्चे करेंगे, ये तो अपनी बुद्धि चाहिए कि भाई चलो इग्नोर कर दो चीज को, और वही उस चीज को बढ़ा दिया। और ऐसा भी कहा जा रहा है कि जितने भी पड़ोस के लोग थे उनके घरों पे भी मतलब कुंडियां लगाई। साल का एक बार त्योहार होता है, हिंदू का भी मुसलमान का भी है, हम होली खेलते हैं, गलती से लग गया गुलाल, क्या होगा इससे? हम गुलाल लगा रहे थे कि रमजान चल रही है, हम तो दिक्कत नहीं दे रहे, ये दिक्कत क्यों दे रहे हमें? कल को आप लोगों के घर में भी है लोग हैं, अगर एक के साथ इतनी बर्बरता से मतलब उसे मारा जाता है, तो कल को आप लोगों को भी खतरा है। बिल्कुल मैडम, बिल्कुल खतरा है, आज उनके साथ हुआ, कल हमारे साथ हो सकता है, और हमारे साथ पूरे देश को खतरा है इनसे। आज ये मत कहो कि यहाँ घर में ही खतरा है, पूरे देश को खतरा है। तो अभी ये जो लड़ाई है ये धर्म की लड़ाई बन चुकी है कहीं ना देखो जी, हिंदू तो कभी चाहता नहीं है कि लड़ाई करे, ये करते तो इसके बाद है ना, वो जाके है ना थाने के आगे इकट्ठे होते हैं और जय श्री राम के नारे लगते हैं, बस ये होता वो होता, फिर वही फाइलों में वापिस वो, उसके बाद ये चलता है, ये समझ रहे हो ना, ये चलता है भाई, ये ले दे के इनकी 60-गांठ पूरी हो जाती है और ये मौज मारते हैं। अभी भी पुलिस प्रशासन किसी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं कर रही। देखिए पुलिस अभी तक जो है आरोपी को, आप लोगों ने इतना घेराव कर रखा है किसी तरीके से? पुलिस अभी जो है आरोपी की लोकेशन ट्रैक कर रही है, और मुझे विश्वास है कि जल्द से जल्द जो भी इसमें कल्प्रिट होंगे उनके खिलाफ जो है सख्त से सख्त धाराओं में मामला पंजीकृत। यहाँ के SHO आए आप लोगों का दौरा? देखिए आपके सामने देखिए सारे पुलिस प्रशासन के लोग यहाँ इकट्ठे हैं, और मेरे को ऐसा लगता है कि जो भी ये घटना हुई है ये बहुत ही निंदनीय घटना है, और ये कहीं ना कहीं जो है समाज में एक बेमनस्ता भी फैलाती है, और जिस तरह से हम लगातार भाईचारे का एक पैगाम देते हैं, आज कहीं ना कहीं वो आज आपके सामने एक्सप्लेन हो चुका है। आपने गाजियाबाद में देखा है किस तरीके से एक व्यक्ति की जो है ब्रूटल तरीके से उसकी किलिंग हुई है, आप सभी ने देखा, पूरा देश ने देखा है कि देश में क्या माहौल है। लेकिन कहीं ना कहीं जो है हिंदू को एकजुट होने की जरूरत है, और हिंदू को कहीं ना कहीं जो आज हमारे अलग अलग रिलीजन में जो बहुत सारे कम्युनिटी में बंट के रह गए हैं, इसका कहीं ना कहीं हमारा एक उदाहरण है
कि ये लोग जो है लगातार इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम लगातार दे रहे हैं। हम यही चाहते हैं, इस देश में कॉन्स्टिट्यूशन है, ये देश न तो गीता की किताब से चलेगा न कुरान की किताब से चलेगा, ये देश कॉन्स्टिट्यूशन से चलेगा और जितने भी भारत देश के नागरिक हैं सबको कॉन्स्टिट्यूशन मानना पड़ेगा। लेकिन ये लोग जो है इस कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानते और विशेष किताब का हवाला देते हैं। कोई बात चाहे नहीं था, ये तो एक तरीके की दुश्मनी निकाली और ये भी नहीं पता कौन सी दुश्मनी निकली है। क्या किसी के साथ लड़ाई झगड़ा था उनका? कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था। किस चीज की मतलब ये खुन्नस निकाली थी? कोई भी बात नहीं थी, पता ही नहीं हमें क्या बात हुई है। एक गुब्बारे की बात और कुछ नहीं, बस एक छोटी सी बात पे बात हुई है बस, और कोई बात ही नहीं है। तो उन्हें मतलब पहले उन्हें धमकाया गया था या कुछ किया गया, ये डायरेक्ट हमें नहीं पता इस चीज का। कौन गाली दे रही थी? जिसके ऊपर गुब्बारा पड़ा था वो गाली दे रही थी, हम उसको मना कर रहे थे। उनके आगे हाथ पैर में जोड़िए तो सारे घर वाले नहीं माने, उन्होंने एकदम से करा है। जो 40-50 लोग एक इंसान के ऊपर, बहुत सारे होते हैं। अभी तक किसी को पकड़ा नहीं, 100 लोगों ने एक इंसान को, पूरी गली और अभी तक किसी को पकड़ा नहीं गया। अभी तक किसी को भी नहीं पकड़ा गया, कोई इंसाफ नहीं हुआ हमारे साथ। भी चलेगा, कुंडी लगा दे तो क्या पता। हमें इंसाफ चाहिए, उसको भी फांसी की सजा दो। हम खून के बदले खून। आप लोगों की आप किसी तरीके का कोई सीसीटीवी लगे हुए हैं? इंसाफ चाहिए हमें तो बस। हमारी सीसीटीवी कैमरे नहीं थे, किसी की कोई पहचान नहीं हो पाई कि कौन लोग थे, कौन। મિત્રો સાંભળ્યું કે દિલ્હીની અંદર જે ઘટના ઘટી એને લઈને આપણા હિન્દુ સમાજના લોકોમાં કેટલો રોષ જોવા મળી રહ્યો છે અને ત્યાં આગળની હાલ શું સ્થિતિ છે એ પણ આપણે સાંભળવા મળી, બરાબર. પરંતુ હું મિત્રો એ કહેવા માગું કે ભારત દેશ ઉપર હાલ ભારત દેશની અંદર લગભગ 40% જેટલા લોકો આપણા ભારત દેશની અંદર મુસ્લિમ સમુદાયના છે અને એની અંદર એ લોકો આપણને ખાલી સારું લગાડવા માટે ભાઈ ભાઈને વાતો કરે છે, પણ એમના દિલો દિમાગની અંદર હિન્દુ પ્રત્યે એટલી નફરતો જોવા મળે છે કે કોઈ હદ નથી. મિત્રો ટૂંક સમય પહેલાં અત્યારે ચાલી રહેલા ઇઝરાયલ અને ઈરાન વચ્ચે જે યુદ્ધ ચાલી રહ્યું ને ત્યાં આગળ ઈરાનનો વડો મુખ્ય નેતા ખામેનેઈનું જ્યારે હુમલા દરમિયાન મૃત્યુ થયું, હવે ઈરાનની અંદર વ્યક્તિ મર્યો અને એની માતમ ભારતની અંદર મનાવવામાં આવ્યો. એટલે આપણને વિચાર કરવા જેવી બાબત છે કે ભારતમાં રહેલા મુસલમાનો એ ભારત પ્રત્યે કેટલો પ્રેમ છે, રાષ્ટ્ર પ્રત્યે કેટલો પ્રેમ ધરાવે છે એ આપણને જોવા મળ્યું. ઈરાનની અંદર મુલ્લો મર્યો અને માતમ અહીંયા યુપીની અંદર જે લખનઉ શહેર છે ત્યાં આગળ મુસ્લિમ સમુદાયના લોકોએ બહુ જ રોકકળ કરી. જ્યારે એમનો કોઈ આકા મરી ગયો હોય, એમનો અબુજાન જતા રહ્યા હોય, એ પ્રમાણે ત્યાંની મહિલાઓમાં પણ રોષ જોવા મળ્યો. જ્યારે ઈરાનની મહિલાઓ ખુશ થઈ રહી હતી અને ભારતની અંદર મુસ્લિમ સમુદાયની મહિલાઓ માતમ મનાવી રહી હતી. નરેન્દ્ર મોદી વડાપ્રધાન ઉપર અનેક ટીકાઓ કરી, અનેક ટિપ્પણીઓ કરી. નાના નાના બચ્ચાઓ એમના એ પણ મોદી સાહેબ ઉપર ગંભીર પ્રકારની ટિપ્પણીઓ કરી, ખરાબ શબ્દો, ના બોલવાના શબ્દો બોલ્યા. એ બધું આપણે જોયું. એટલે ભારત દેશની અંદર સૌથી વધારે દબદબો હિન્દુઓનો છે કે મુસલમાનોનો છે એ કંઈ ખબર પડતી નથી, બરાબર. આપણી સરકાર આજે પણ એમ કહે છે કે હિન્દુ રાષ્ટ્ર, સનાતની ઘણી બધી વાતો કરે છે, પરંતુ એક પણ આ મુસ્લિમ સમુદાય ઉપર એક્શન લેવાનો આ સરકાર વ્યાજબી સમજતી નથી, યોગ્ય સમજતી નથી. વધારે વાત નથી કરવી, પણ સમજી જાજો. અત્યારે આપણે જોયું એક પછી એક દિલ્હીની અંદર જે લોકો કહી રહ્યા છે એ આવનારા સમયની અંદર ક્યાંક ને ક્યાંક સાચું સાબિત ના થાય એનું ખાસ આ સરકાર પણ ધ્યાન રાખે અને આપણે પણ સમજવા જેવી બાબત છે, બરાબર. રજા આપશો, મળીએ નવા વિડીયોની અંદર. જય માતાજી.